Hello everyone. My name is Major General Balraj Mehta and you are watching my channel Commanding Excellence. Hello. I hope I find you all in the best of your spirits. Today is the Sunday and it is the beginning of a new series of live Instagram channels on the parenting and child development aspects, which I am starting today. I am sure you would have read my message. I always feel that one should, die empty. That is, when you die, you should not be having anything left with you, and all your wisdom, experience, knowledge, you should have imparted to the society, to your children, and to everybody, possibly put it in record for future generations who cannot hear it from you firsthand. I also believe very strongly in what the Iron Man of Germany, Mr. Bismarck, had said, and I quote, he said, I feel that people who learn from their own mistakes are fools. I prefer to learn from others' mistakes, unquote. So this is my endeavor to help you and the interested people learn from my experiences, good and bad, and be able to absorb whatever my gray hairs have given me, so that you can benefit and I can do my duty to the society and to the future generations by passing on whatever I have seen, heard, learnt and absorbed. Now, as I keep on saying that parenting is a divine responsibility and we are not owning the children. Parents are not owners of the children. Children are souls who have been entrusted to you for their development and taking them to the pinnacle of their potential. This is what the parents are supposed to do. Now, the mistakes the parents make is that they feel that the children should listen to whatever they say and adhere to it by letter and spirit, and then this thing becomes all right, remains all right till the time the child is 6-7 years old, but thereafter, the moment they are 8 to 9, 10, 11, thereafter the rebellious behavior starts, and when they are teenagers, this behavior is at its peak. On the other hand, if you lovingly are able to modify your parenting style to get the child along by the threads of love and affection, then the child will listen to you, he will do whatever you want him to do also, as also he will be very stable and emotionally sound, balanced and a well disciplined, well behaved child. As they say, दुनिया में सबसे मजबूत जो धागा है वो प्यार का धागा है. जबरदस्ती से आप किसी को ज्यादा समय तक मजबूर नहीं कर सकते. जब तक बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, शेल्टर के लिए, खाने पीने के लिए, सेफ्टी के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए, या जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती, तब तक वो आपके डर से काम कर सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके प्रति गुस्सा रहेगा. और वो जैसा ही आपका कंट्रोल खत्म होगा, वो बच्चा बिगड़ जाएगा. इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चे स्कूल के डिसिप्लिन वाली एनवायरनमेंट से निकल के कॉलेज के फ्री एनवायरनमेंट में जाते हैं, उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है. और जो बच्चे डिसिप्लिन्ड बैकग्राउंड से आते हैं, डिसिप्लिन फैमिली से आते हैं, डिसिप्लिन चाइल्डहुड के थ्रू गुजर करके एडोलेसेंट को क्रॉस करके कॉलेज लाइफ में आते हैं, वो बैलेंस रहते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं. और जो बच्चा डिप्रेस्ड, ओप्रेसिव एनवायरनमेंट से आता है, माँ बाप ने बहुत डांट के दबा के रखा होता है, वो बच्चा एकदम से ही जब उसको फ्रीडम मिलती है तो वो
कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये ऐसे ही बच्चे जो बाहर जाकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं, तरह तरह की एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, कॉलेज बंक करते हैं और कई तरह के और अपने पेरेंट्स का नुकसान करते हैं और अपने फ्यूचर का नुकसान करते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको जो बेसिक संस्कार आपने देने हैं, बेसिक संस्कार और जो सोसाइटी के अंदर रहने के लिए वैल्यूज हैं, जो हमारे सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर आप ठीक तरह से अपने बच्चों के अंदर में डाल सकें तो बच्चे ऑटोमेटिकली एक सही रास्ते पर चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि आजकल के ज़माने में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रखी हैं, जो कम्युनिकेशन की हैं, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, इस तरह का जो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, और वो डिस्ट्रैक्शन हम लोगों ने ही इसको बड़ा भयानक रूप देने में सफलता हासिल की है कि हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए और हमने बच्चों को कई कई तरह के टीवी के प्रोग्राम, टैबलेट्स के ऊपर में, लैपटॉप के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में दिखा दिखा कर उनको उस तरह से एक एडिक्ट हमने खुद ही बना दिया है। और अब जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो उस एडिक्शन से निकल नहीं पाते हैं। माँ बाप अगर बिजी हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों माँ बाप काम करते हैं, तो वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं और उनके पास अपने जैसे दादा दादी, नाना नानी का देखभाल करने का फैसिलिटी अगर नहीं है तो बच्चे को कैसे बिजी रखेंगे। तो वही बात है भाई, काम से आएंगे उसके बाद बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे, भाई 1-2 घंटे ये बिजी रहेगा, तब तक हम लोग घर का काम कर लेंगे। और माँ बाप वेट करते हैं कि कैसे कब तक बच्चा जो है 3, साढ़े 3, 4 साल का हो तो वो स्कूल जाना शुरू करे और हमारे हाथों से जाए, सो दैट हमें कुछ समय मिले। तो ये अगर हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है या ये हमारी पेरेंटिंग मजबूरी है तो फिर हम कई चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। और इन सब चीज़ों का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आपने बाउंड्रीज जरूर ले करनी है, आपने रूल्स ले करने हैं कि बच्चे क्या क्या रूल फॉलो करेंगे। और वो रूल्स जो हैं अपनी तरफ से आप एज अ डिक्टेटर अगर बच्चों के ऊपर लगाएंगे तो बच्चे अपनी मन मर्जी से उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो तभी फॉलो करेंगे जब आप देख रहे हैं, आपका डर है, और जैसे ही आप लोग आगे पीछे होते हैं, थोड़ी ढिलाई देते हैं, पूछते नहीं हैं, चेक नहीं करेंगे, तो वो रूल फॉलो नहीं होगा। अभी म्यूचुअल कंसल्टेशन से जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार है, 6 साल का है, 5 साल का है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके साथ में अगर आप बातचीत करके उसको समझाएं और उसको ये उसके दिमाग में डाल दें कि भाई ये काम मुझे मंजूर है, ये काम मुझे मंजूर नहीं है। सो इस तरह के रूल्स अगर आप ले करते हैं तो उसके बाद उनको फॉलो करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे और अगर उसका फॉलो नहीं करेंगे, लेआउट कर दिया अपने रूल के ये आपने करना है, और अगर उसको चेक नहीं करेंगे, इंश्योर नहीं करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फॉलो होना बंद हो जाएगा। और फिर आप 15 दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद सडनली चेक करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो दिल में यही सोचता है कि आप जब चेक ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये फॉलो करना बहुत जरूरी नहीं है। सो ये जो रूल्स हैं, अभी इसका दूसरा पहलू ये है कि जो रूल आप अपने बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं वो आप अपने लिए भी अप्लाई करेंगे। अगर आप बच्चे को बोलते हैं भाई झूठ नहीं बोलना है, और आप उसके सामने टेलीफोन के ऊपर में कहीं पर किसी को गप मार रहे हैं, तो उसको पता है कि भाई मेरे पापा तो सीधा झूठ बोल रहे हैं, तो वो आपका बात को क्यों मानेगा? इसी तरह से अगर आप बोलते हैं कि भाई डिजिटल एडिक्शन नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है, और आप खुद मोबाइल देख रहे हैं बैठ के, बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं भाई मोबाइल बंद करो, गाने मत सुनो, कान में ईयरफोन मत लगाओ, कान बंद, इसको बंद करके रखो, फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, और उसके सामने माँ बाप बैठे हुए हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं,
तो वो बच्चा जो है वो इरिटेट भी होगा, वो उसको मिस भी करेगा, और वो ये भी सोचेगा कि ये मम्मी पापा जो हैं इसके बारे में सीरियस नहीं है। तो जब आप नहीं होंगे कमरे में तो बच्चा फट से कान में ईयरफोन लगाएगा और सुनना शुरू कर देगा। तो ये जो चीज है ये बहुत ही जरूरी चीज है, और फॉलो करना एज अ रोल मॉडल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ एनफोर्सिंग के जो रूल आपने बनाए हैं वो रूल फॉलो हों। अभी मैं बड़े दुख और चिंता के साथ मुझे ये अभी बात करनी पड़ रही है कि जो पूना में एक्सीडेंट हुआ है, अभी आप देखिए, हम लोग अपने बच्चों को पैम्पर जो करते हैं कि हम अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो हमें शायद ना मिला हो, और हो सकता है कि हम एक दूसरे फैमिलीज के कंपटीशन के अंदर में अपने बच्चों को वो चीजें दे दें जो हमारे भी बस से शायद बाहर हो, और अगर बस से बाहर नहीं है तो हो सकता है कि उन बच्चों को उसका कंट्रोल और यूज करने का काबिलियत अभी तक ना हो। अभी पूना में जो एक्सीडेंट हुआ है, पोर्शे कार जो कितने करोड़ रुपए की आती है, उसको एक बच्चा जो 17 साल 8 महीने का है, अभी माइनर है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसने शराब पी रखी है, और वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चला रहा था, और उसने एक्सीडेंट किया, और दो जो इंजीनियर 22-23 साल के बच्चे उनको मार दिए। अब आप ये बताइए भाई इसमें गलती किसकी है? पहले आप इसका असर देखिए। इस घटना से सबसे पहले वो जो 2 बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनका तो वो तो मतलब चले गए, उनका फ्यूचर खत्म हो गया। इंजीनियर्स थे, दे कुड हैव डन वेल, दे शुड हैव लिव्ड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ एंड दे शुड हैव कंट्रीब्यूटेड। तो उनका लाइफ जो है आपने प्रीमेच्योरली खत्म कर दिया। इसके साथ उन दोनों जिनकी डेथ हुई है, उन दोनों बच्चों के परिवारों के बारे में आप सोचिए, उनको कितनी कष्ट हुआ है, और उनके लिए क्या पहाड़ मुसीबतों का उनके ऊपर टूट पड़ा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी अभी आपकी गेहूं की फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए और कोई बात नहीं, अगले साल फिर फसल लगाएंगे, फिर अच्छी हो जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। 22-22 साल के बच्चे जो बड़े किए हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी डेथ हो जाए तो ये दोबारा से घाव जो है ये भरने वाला नहीं है। तीसरा आप देखिए उसने अपने लिए क्या किया। अभी वो क्रिमिनल बन गया है, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको सजा होगी, और उसका जो है अपना ब्राइट फ्यूचर जो है कई तरह से खराब हो जाएगा। उसकी साइकोलॉजी पर जो असर पड़ेगा वो बात अलग है, और इसके साथ साथ उसके अपने परिवार के ऊपर देखो कैसी मुसीबत पड़ी है। उस एक बच्चे ने अपने उस एक्शन से अपने परिवार के ऊपर कैसी कैसी मुसीबत खड़ी करी, और उसके ऊपर उस परिवार ने किस तरह से उस बच्चे को सजा से बचाने के लिए जो भी कुछ किया। अब मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता, मैटर अभी सब जुडिस है, लेकिन द फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि उसकी फादर, उसके ग्रैंडफादर और उसकी मदर तीनों अभी अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में है। इसके बाद अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी इस चीज को छुपाने में मदद करने के आरोप में जो डॉक्टर, जो पुलिस वाले और जो जुडिशियल पर्सन इन्वॉल्व है, उनके ऊपर भी मुसीबत है, और उनको भी अभी अपनी जो करतूत है, चाहे उन्होंने पैसे लेके किया, भाईबंदी में किया, पॉलिटिकल प्रेशर में किया, लेकिन उन्होंने जो किया उसका भी असर अभी उनको देखना पड़ेगा। ओवरऑल सोसाइटी में ये बहुत गलत मैसेज आता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस है कि आप अपने बच्चे को 1-1.5 करोड़ की गाड़ी लेके दे सकते हो, तो भाई उसको बोलो कि जाके रेसिंग ट्रैक में चलाए ना, 260 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की स्पीड पे चलाए, अपना करे, अपना शौक पूरा करे। अगर आपको उसको जहाज लेकर देना है तो जहाज लेके दीजिए, उसको घोड़ा लेके देना है घोड़ा लेके दीजिए, मोटरसाइकिल लेके देनी मोटरसाइकिल लेके दीजिए। अभी आज से 15-20 साल पहले की बात मैं बताता हूं भाई। एक ऐसी ही रिच फैमिली ने अपने बेटे को उस समय के हिसाब से 15 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेके दी, जो कि 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती थी। अकेला बेटा।
एक बेटा, और वो 18-20 साल का रहा होगा, और कहीं पर वो पहले दिन रेसिंग कर रहा था किसी के साथ, और वो दिल्ली में ही कहीं पर किसी फ्लाईओवर में ट्रक से टक्कर लगी और उसके बाद वो ट्रक के नीचे आ गया। और जिन लोगों ने उसकी बॉडी उठाई, मैंने उनसे खुद बात की थी, और वो कह रहे हैं कि वो बॉडी जो है वो 2 टुकड़ों में थी, उसका सेंटर वाला पोर्शन था ही नहीं, बिकॉज ट्रक का पहिया ऊपर से निकल गया। अब उसकी जो मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स को तो छोड़ दो, उनकी आगे की लाइफ क्या उसका मीनिंग रह जाता है। सो अभी नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि ये गलती किसकी है, ये गलती किसकी है। तो मैं ये 100% इस बात को मानता हूं कि ये माँ बाप की गलती है, और उन लोगों को अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्रोल जा करके जो अपनी सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी, मोरालिटी और एथिक्स के खिलाफ जाकर के जो काम करना है, तो वो नहीं अलाउ करना चाहिए। इसीलिए जो रूल्स की मैं बात कर रहा था, वो रूल्स कई एक रूल ऐसे हैं जो इनफ्लेक्सिबल होने चाहिए, उस रूल को तोड़ा नहीं जा सकता। वो रूल हैं जो आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए जरूरी हैं, आपकी लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करने के लिए जरूरी हैं, जो एथिक्स और मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी को फॉलो करने के लिए जरूरी हैं। और अगर रूल आपने वो बाउंड्री सेट नहीं करी और उस बाउंड्री को फॉलो नहीं कराया, तो फिर आप का कोई कंट्रोल बच्चे के ऊपर नहीं रहेगा। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए ये बच्चा अपने 2 दोस्तों के साथ ड्राइवर को लेकर के गया हुआ था। अब ये एक चीज और है, अब ये जो एडल्ट नहीं है, इसको किसने किस बार वाले ने इसको शराब पिलाई, इसको कैसे अलाउ किया गया। सो ये सारी चीजें जो हैं, इसके ऊपर घर में बैठे माँ बाप का कंट्रोल नहीं हो सकता है। बाहर अभी स्कूलों के बाहर ड्रग्स मिलने शुरू हो गई, गली गली में शराबों के ठेके खुले हुए हैं, और टाउट्स बहुत घूम रहे हैं जो आपको किसी भी तरह के प्रलोभन से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसों के साथ में, जिनको लागू नहीं है उनको भी वो ये चीजें मुहैया कराते हैं। इन सब चीजों के ऊपर माँ बाप का कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल आप अपने घोड़े को लगाम देने से ही कंट्रोल कर पाओगे। आपके जो बच्चे हैं, अगर वो आपकी बात सुनते हैं, अगर वो आपकी बात मानते हैं, तो ही वो इन सब खतरों से बच सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे, पहली बात है, अगर आप उनको ठीक तरह से कंट्रोल नहीं करते हो, आपने ढीला छोड़ा हुआ है, मॉनिटर नहीं कर रहे हो, उनको आपका कोई डर ही नहीं है, उसके बाद आपने उनको खूब अपना फ्रीडम दिया हुआ है, पैसे हैं, गिफ्ट्स हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, हॉलीडेज हैं, महंगे टेलीफोन हैं, महंगे मोबाइल्स हैं, और तरह के गैजेट हैं। सो हाउ विल यू कंट्रोल? एंड जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये जो नुकसान है, ये जो शॉक है, ये जो झटका है, ये कोई वापस मुड़ के रिवर्स होने वाला नहीं है। ये या तो आपके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं जो कि आप पानी की तरह बहा करके किसी को भी बचा के रख सकते हो। कोई हिरन को मारता है, या कोई सोते हुए लोगों को गाड़ी से कुचल देता है, तो अगर आपका कोई वकील है जो 1 करोड़ रुपया एक हेयरिंग का लेता है, या 25, 40, 50 करोड़ रुपया आप इधर उधर खर्च करते हो, तो वो गाड़ी का ट्रक बन सकता है। लेकिन फिर भी हमेशा से वो डर जो है आपके दिमाग में रहेगा, और कई और चीजें उसमें जुड़ जाएंगी, और आपकी आत्मा के ऊपर तो जरूर वजन रहेगा। हम सब लोगों में जो लोग 1 करोड़ रुपया पर हेयरिंग वकील के ऊपर खर्च कर सकें, वो मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में 1, 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 हजार से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जो कॉमन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनमें ये ताकत नहीं है। तो ये मौका ना आए, इसके लिए अच्छा यही है
कि अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए, उनके लिए आप रूल रेगुलेशंस लगाइए, बाउंड्री सेट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि जो बाउंड्रीज हैं वो फॉलो हों, और बच्चों को प्यार से अपने साथ रखिए। गुस्से से, बहुत ज़्यादा सख्ताई से, लापरवाही से, ढिलाई से ये आप काम नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो है माँ बाप, कोई भी माँ बाप हैं, वो हर एक माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन बच्चे जो हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग दैट चिल्ड्रन आर डिलीवर्ड टू यू विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आपके पास कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है कि भाई ये बच्चा आ गया, अभी इसको आप लोग कैसे कैसे डेवलप करना। सो हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप जनरली ये देखते हैं कि भाई हमारे दादा दादी, बच्चों के दादा दादी ने या हमारे माँ बाप ने कैसे हमें बड़ा किया। लेकिन आप ये देखिए कि जो आप लोग जब बच्चे थे, जब बड़े हो रहे थे, तो अभी वो 35-40 साल पुरानी कहानी है, और पिछले 30-35-40 सालों में दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और हर साल बदल रही है। जो चेंजेस अभी आ रहे हैं वो हर साल आ रहे हैं। अभी जो है, पिछले 2 साल पहले कोई चैट जीपीटी नहीं था, आज से 10 साल पहले कोई फ्री इंटरनेट नहीं था, आज से 20-25 साल पहले मोबाइल नहीं था। तो ये चीजें जब अभी आ गई हैं, अभी आपका एआई आ गया है, उसके साथ में क्या कुछ नहीं हो सकता है। क्लोनिंग हो सकती है, आपके डीप फेक्स बन सकते हैं, बच्चों को किसी भी तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है, और नहीं तो उनको किसी तरह के गलत इन्फ्लुएंस में लेके आपको एक ऐसी गंदी दुनिया में धकेला जा सकता है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर करता रहूंगा। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आपके पास जो कोई सजेशन है, जो आप मुझे बताना चाहें कि भाई इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात कीजिए, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप किसी एक तरह से किसी अपने आप को यू फाइंड अप अगेंस्ट अ वॉल, प्लीज गिव मी अ मैसेज and I will be able to help you out definitely with whatever best tools I have at my disposal. Thank you very much. Take care and Jai Hind.